Good morning, church अ, सुप्रभात कलिसिया and family. और परिवार। Really, I thank God for the way He is keeping us, holding us, teaching us with His word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जिस तरह से वो हमें सिखा रहा है, बता रहा है, चला रहा है। This morning also, I was just thinking on the same thing when the children was narrating the memory verse. मैं इस सुबह मैं यही सोच रहा था, जो सुबह बच्चे जो अपने मेमोरी वर्स बता रहे थे। One of the memory verse was from Galatians chapter 5, verse 25, और एक 5:25. और एक मेमोरी वर्स ये था, जो गलतियों 5:25। There it says, "If we live by Spirit, let us also walk by the Spirit." अगर हम आत्मा के, एक मिनट, हम पढ़ लेते हैं उस वचन को। 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। Here it is talking about living by the Spirit and walking also by the Spirit. और वो यहाँ पर जो है आत्मा के अनुसार चलने के लिए और आत्मा के अनुसार जीवन जीने के लिए कह रहा है। What is that life that we live by the Spirit and walking in the Spirit? और वो आत्मा के द्वारा जीवित रहना और उसके अनुसार चलना क्या है? This is what I see. Like it is like crucifying the flesh with its passion and desires, where it is written verse 24. और वो ये है कि क्रूस पर चढ़ाना, शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाना And passions and desires. और उसके अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना। These days when we are living in today, there are lots of desires and passions that we carry in our inner life. इन दिनों हमारे जीवन के अंदर हम सभी अपने शरीर में बहुत सारे लालसाएं और अभिलाषाओं को लेकर चलते हैं, Which may be there inside, and maybe we may not show it, but it is there inside. और ये सारे बातें जो लालसा अभिलाषा जो है वो हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारे अंदर है। Like what brother Santosh explained also about it. जिस तरह भाई संतोष ने उसका व्याख्यान किया। But one thing where it is explained is to live in the Spirit, is to have that fruit of the Spirit in my life. और एक बात वो है जो आत्मा के अनुसार चलना, जो हमारे जीवन के अंदर आत्मा के फल को अभिव्यक्ति करना। Just what we heard from Hebrews chapter 13 verse 16. जैसे कि हमने सुना इब्रानियों 3:13 में, 13:16. सॉरी 13:16 में, Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। It is that fruit which I carry in the Spirit. और ये जो आत्मा का फल जो है वो मैं हमारे जीवन में मैं लेकर चलता हूँ। Not to neglect it, but always bearing it, and always having it throughout my, not just on Sunday or not just today for this moment, but having it every time in myself. और उसे नजरअंदाज नहीं करना है, आत्मा के फल को वो हमें निरंतर, केवल आज नहीं बल्कि निरंतर जो हर पल में उसे लेकर चलना, आत्मा के फल। Like what it is written in 22 and 23. जैसे कि लिखा है 22 और 23 वचन में, That is Galatians 5:23, 22 and 23. गलतियों 5वां अध्याय 22-23 में जिस तरह लिखा है, That is the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. जैसे कि लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। This is the sweetness which I should have in my life, which should come out as an aroma towards God and towards others. और ये एक मधुरता है जो हमारे जीवन के अंदर मुझे लेकर चलना है, जो उसकी अभिव्यक्ति हमें करना है। Many of the times I feel that I am not complete in this fruit of the Spirit. There's many things that I still lack in my life. और बहुत बार मुझे ऐसा भाता है कि इन सारे जो आत्मा का फल है मेरे अंदर, इसमें बहुत सारे चीजों की कमी है। Because when I really have this fruit, I feel I will have that fullness of the Holy Spirit. अगर ये सारे फल अगर मेरे अंदर है तो मैं आत्मा की भरपूरी को मैं महसूस कर पाऊंगा। When really a person has this love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control, अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर ये प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम अगर होगा तो it is an essence which is there, like when you have a good aroma, and where the
life is more tasty and it is more adoring to God. और ये एक ऐसा होगा जैसे कि हमारे जीवन के अंदर एक मधुरता है और एक सुगंध फैला जा रहा है. Really, God help us to have this in our inner life and help together to grow in living in the Spirit. और सच में प्रभु हम सबको इस विषय में मदद करे कि हम सब इस आत्मा के फल को लेकर आत्मा के अनुसार चल पाए. God only lead and bless. Amen. Thank you. God only lead and bless. Amen. Thank you. परमेश्वरी महिमा के योग्य है और Thank हम you. सबको आशीषित करे. आमीन. मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वचन के लिए कि अलग अलग क्षेत्रों में हम अपने आप को सच में जांच सके कि हम कहाँ पर हम पाए जाते हैं हमारे जीवन के हालात के अंदर. कई बार मैं देखता हूँ, कई बार वो क्रोध या इरिटेशन, कई बार हाँ हम लोग बार बार उस बारे में सुनते हैं लेकिन वास्तव में उससे पूरी तरह से छुटकारा अभी भी नहीं पाते हैं. लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना है कि प्रभु निरंतर उन सारी बातों में जो हम सीखते हैं उसको घर में अभ्यास करके उसके ऊपर चलने के लिए मदद करे हमारी. एक वचन से मैं आशीषित हुआ जो है उत्पत्ति 7 अध्याय जेनेसिस 7. वहाँ लिखा है उस वचन में 5 वचन में जेनेसिस 7 वर्स 5 नोआ के बारे में है. नोह के बारे में वहाँ लिखा है कि सो नोआ डिड एवरीथिंग एज द लॉर्ड कमांडेड हिम. नूह ने वैसे ही किया जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी और उसको और भी आज्ञा दी थी कि कैसे उसको बनाना है, कैसे इन पक्षियों को पशुओं को उस जहाज़ के अंदर लेकर आना है. ये वचन मुझे बहुत आशीषित किया कि उसने वैसे ही किया, उसको बिल्कुल भी अदल बदल करने की कोशिश नहीं किया. और मेरे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि उन आज्ञाओं को मैं पहले समझूं कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, किस स्तर पर मैं अपने आप को जांच सकता हूं. हो सकता है कि मेरे जीवन में अब भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर मैं उन आज्ञाओं को जानकर भी उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं. ऐसे क्षेत्रों को परमेश्वर ने दिखाया कि ऐसे क्षेत्र है जहां पर आज्ञा पालन मुझको पता है कि मुझे यहाँ पर आज्ञा पालन करना है पर नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, न कलीसिया है, न वहाँ पर वो पूरी तरह से पुरानी वाचा में भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसको वो पूरी तरह से कर पाता था. कैसा वो प्रेम, कैसा वो भक्ति परमेश्वर के प्रति उसके जीवन में मैं देख सकता हूँ. और आज मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध है, केवल मेरे अंदर एक इच्छा चाहिए कि प्रभु मैं पूरी तरह से तेरी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ जैसे नूह ने किया. और यीशु मसीह का वचन मुझे याद आता है, वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे. और भजन में भी लिखा है कि डिलाइट इन मी देन आई विल गिव यू द डिजायर. एक ही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को प्रेम करें. परमेश्वर को प्रेम करना उसका मतलब ये समझना है कि मुझे मेरा आनंद, मेरी प्रसन्नता परमेश्वर में ढूंढना है. और ये मेरे जीवन में सबसे प्रथम प्राथमिक स्थान पर हर जगह पर हर दिन होनी चाहिए कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करूं. तब नूह के समान, क्योंकि वहाँ पे 3-4 वचन में पढ़ रहा था कि उसको और भी पक्षियों को, जंगली पशु पक्षियों को, कितने सारे पक्षुओं को लेकर आना था उसके अंदर. मैं मानता हूँ कि वो परमेश्वर उन पशुओं को शायद वहाँ पर लेकर आया होगा, उन कैसे भी करके उसके प्रयत्न होंगे. लेकिन जब हम इच्छा को रखते कि प्रभु मेरी तेरी हर आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, तो वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट परमेश्वर हमारे लिए कर देता है, हमारी केवल पहल, हमारा इनिशिएटिव परमेश्वर के लिए काफ़ी होता है. और एक क्षेत्र जो उसके उसी अध्याय के 18 वचन में लिखा है, वहाँ लिखा है 18 वचन में लिखा है द वाटर्स रोज स्प्रेड आउट ओवर द अर्थ, द आर्क floated on the surface of the waters rose even high over the earth, they covered all the highest mountains under the sky. यहाँ पे जैसे लिखा है कि हिंदी में लिखा है कि उन बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो थी वहाँ पर उसको उस पानी ने ढांप दिया. और मैं देख रहा था कि प्रभु आज मेरी जिनमें भी वो बड़ी बड़ी बातें हैं जो घमंड के जैसे आज भी खड़ी है, मुझे वो अनुग्रह चाहिए तेरा अनुग्रह की प्रभु आज वो सारी पूरी तरह से ढप जाए, वो ना दिखे लेकिन केवल वो तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के अंदर दिखे. यही मेरी इच्छा चाहता हूँ कि प्रभु के सामने कि प्रभु हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कैसे भी हो प्रभु, कोई भी ऐसा पहाड़ है, ऐसा माउंटेन है जो अपने आप को ऊंचा उठाता है परमेश्वर से बढ़कर, जैसे हमने स्वार्थी इच्छा के बारे में, सेल्फिश एम्बिशन के बारे में सोचा, आज देखा है. यदि मैं अपने आप के जीवन को मैं जांचूं तो ऐसी महत्वाकांक्षा है जो एक बड़े पहाड़ के जैसी है, एक चुनौती के जैसे है. लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह जब मेरे जीवन में और अधिक बढ़ते जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सारी पूरी तरह से ढप जाएगी. हाईएस्ट माउंटेन अंडर द स्काई लिखा है कि पूरी तरह से वहाँ पे 19 वचन में ढप गया, पूरी तरह से उस पानी ने ढांप दिया. ये जीवन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है जब हम पूरी तरह से परमेश्वर को अपने हाथों में देंगे
और वचन कहता है कि पाप की प्रभुता तुम पर न होगी, लेकिन अनुग्रह के बढ़ने से अब हम और अधिक पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही इच्छा चाहता हूं कि प्रभु और अधिक तेरा अनुग्रह और अधिक तेरे सामर्थ, प्रभु तेरी सहायता मेरे जीवन में बढ़े, ताकि हर एक वो ऊंचे से ऊंचा जो पहाड़ घमंड का है या ऐसी बातें हैं वो मेरे जीवन से दूर हो सके। आमीन।